Hello students, we are back with another new video and we are reading chapter 6 of history, towns, traders and craftsmen. And in this chapter we had read about types of towns, court or capital towns, temple towns and pilgrimage centers, commercial towns. In commercial towns we had read about port towns and now we will read about trading towns. क्या होते हैं trading towns? During the medieval period, several small towns emerged from large villages. Medieval period में बड़े विलेजेस से, बड़े गांव से कुछ स्मॉल टाउन्स बने. These towns usually had a मंडापिका. इन टाउन्स में मंडापिका होते थे जिनको मंडी बोला जाता था, मंडी भी बोलते हैं. Here buyers and sellers of nearby and distant villages gather to buy and sell the products, and they also had market streets lined with the shops called hatta or hut. These towns also had the streets for different kinds of artisans such as potters, oil pressers, sugar makers, toddy makers, blacksmiths, goldsmiths, stone masons, etc. The items of trade included saffron, salt, spices like pepper, camphor, betel nut, horses and cattle. तो ये जो ट्रेडिंग टाउन्स थे ये लार्ज विलेजेस से बने थे और इनमें मंडी होती थी और यहाँ बायर्स एंड सेलर्स, खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही आते थे. पास के और दूर के गांव से दोनों ही जगह से यहाँ पे सेलर्स एंड बायर्स आते थे और अपने सामान बेचते थे. कुछ अपने सामान बेचते थे, कुछ सामान खरीदते थे. और यहाँ पे हाट होते थे जैसे जिसको हट्टा बोला जाता था. आज भी गाँव में हाट बाजार लगते हैं तो उस समय इनको हट्टा बोला जाता था. अलग अलग आर्टिसंस होते थे जैसे कि पॉटर्स, ऑयल प्रेसर्स, शुगर मेकर्स, टोडी मेकर्स, ब्लैक स्मिथ्स, गोल्ड स्मिथ्स, स्टोन मेसन्स, ये सब होते थे. Generally a trading town developed as a result of the products found in that particular region. Nearby ports or major trade routes, Kasim Bazar in Bengal and Ahmedabad in Gujarat were famous for cotton and silk textile. तो ये जो ट्रेडिंग टाउन्स थे ये ऐसी जगह पर बने हुए थे जहां कोई खास चीज वहां पर मिलती थी, जैसे कि अहमदाबाद में, गुजरात में, और कासिम बाजार जो कि बंगाल में, वो कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स के लिए फेमस थे, प्रसिद्ध थे. काबुल एंड कंधार प्रेजेंटली इन अफगानिस्तान वर द सेंटर्स ऑफ हॉर्स एंड सिल्क ट्रेड. Traders and craftsmen, trading communities. The trading communities were central to this medieval economy because trade promoted crafts, urban growth, building activities, etc. People from all castes joined the trading professions. There were various kinds of traders, ranging from very big merchants to पेटी हॉकर्स. छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारी, हर तरह के व्यापारी इन ट्रेडिंग कम्युनिटीज में होते थे, हर कास्ट से. Nagasratis were big and influential merchants. They participated in trade within and between Indian kingdoms and in foreign trade. They also specialized in banking and money lending and often gave large donation to the religious organizations. Nagasratis बड़े मर्चेंट्स होते थे और काफी इन्फ्लुएंशियल होते थे, प्रभावशील होते थे. वे इंडियन किंगडम्स और फॉरेन ट्रेड दोनों तरह का ही व्यापार करते थे और वे मनी लेंडिंग का काम भी करते थे और डोनेशन भी देते थे. मनी लेंडिंग यानी धन भी उधार देना, एक तरह से बैंक की तरह काम करते थे ये, और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को ये डोनेशन देते थे. सच बिग मर्चेंट्स इंक्लूडेड द चेटीज ऑफ तमिलनाडु, द खत्रीस ऑफ पंजाब, द बोहरास ऑफ गुजरात एंड द बनियास ऑफ नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न इंडिया. सम बनियास सच एज द ओसवाल्स ऑफ ओसी had surnames derived from their respective places of origin. The Banjaras were traders in foodstuffs such as rice, flour,
बटर, मिल्क, वेजिटेबल्स एंड शुगर्स। बंजारास, जिनके बारे में हमने सुना, उनका नाम आज भी हम सुनते हैं, बंजारास। ये जो थे, ये राइस, फ्लोर, बटर, मिल्क, वेजिटेबल्स एंड शुगर, इन सब का काम देखते थे, करते थे। दे बॉट most of these products from peasants who had to pay their land revenue in cash. The Banjaras carried the products to various markets in the urban centers. तो ये बंजारस क्या करते थे, जो पीजेंट्स होते थे, किसान होते थे, उनसे ये प्रोडक्ट्स लेते थे और इनको मार्केट तक, अलग अलग मार्केट तक ले जाते थे और सेल करते थे। Large group of Banjaras moved with their families and goods in caravans. These caravans were huge processions of craft, sometimes more than 10,000 drawn, usually by oxen or camels. तो ये बंजारा अपनी फैमिली के साथ में और अपने सामान के साथ में, गुड्स के साथ में कारों में चलते थे, और एक कारवा में 10,000 से ज्यादा बंजारे चलते थे। अपने सामान को वो ऑक्सन पर या कैमल्स पर ले जाते थे। एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी का एक्सचेंज कैसे होता था? The exchange of money increased enormously with the growth of internal and foreign trade. The use of hundis made long distance trade safe. बिल होते थे एक्सचेंज के, जिनको हुंडी बोला जाता था, उससे लॉन्ग डिस्टेंस के जो ट्रेड थे वो सेफ हो गए। बिफोर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंट प्लेसेस, मर्चेंट्स वुड डिपॉजिट मनी विद सर्राफ्स, इनको मनी चेंजर्स बोला जाता था। जो मनी को एक्सचेंज करते थे, मनी को चेंज करते थे, उनको सराफ बोला जाता था। तो दूर की जगहों पर जाने से पहले इन सराफ्स के साथ में मनी का एक्सचेंज किया जाता था और हुंडी ली जाती थी। हुंडी क्या होता था? जिनको बिल ऑफ एक्सचेंज होता था, वो उसको हुंडी बोला जाता था। आफ्टर रीचिंग देयर डेस्टिनेशन, द मर्चेंट रिसीव्ड देयर मनी on producing the hundis. Merchant guilds, merchants dealing in the same kind of good formed guilds, एसोसिएशन होते थे जिसको गिल्ड बोला जाता था। तो मनी मर्चेंट्स डीलिंग इन द सेम काइंड ऑफ गुड formed guilds. Every guild laid down strict rules for its members and protected their interest. हर गिल्ड का एक स्ट्रिक्ट रूल होते थे और जिससे कि उनको कोई नुकसान ना हो, उनके जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहे। द गिल्ड्स कंट्रोल द क्वालिटी, प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. दे ऑल्सो गेव डोनेशन टू रिलीजियस बॉडीज. अमंग द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, गिल्ड्स वर द मैनीग्रामम्स एंड द नानादेसिस ऑफ साउथ इंडिया. फॉरेन ट्रेड, विदेशों से व्यापार कैसे होता था? इंडिया हैड ट्रेड लिंक्स विद द वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड द मेडिटेरियन कोस्ट थ्रू द रेड सी एंड द पर्शियन गल्फ. ट्रेडर फ्रॉम अरबिया, टर्की, सीरिया एंड यूरोप traded activity with Indian merchant communities such as the Banyas and Bohras. Italian merchants who dominated the Mediterranean trade carried Indian goods to European markets. So, जो Banyas and Bohra Italian merchants, ये इंडियन गुड्स को यूरोपियन मार्केट्स में ले जाते थे. India had maritime trade with Southeast Asia and China as well. The Pala ruler of Bengal encouraged merchant guilds to participate in these prosperous trade. Overland trade routes linked India inland trade centers such as Lahore and Multan to Central Asia and China. Indian textiles, spices, jewelry, ivory goods, rice, sugar and iron sold well in foreign मार्केट्स. तो ये सब जो सामान है, जैसे कि टेक्सटाइल, स्पाइसेज, ज्वेलरी, आइवरी गुड से हाथ दांत की बनी चीजें, राइस, शुगर एंड आयरन, ये इनका फॉरेन मार्केट में भी इनको बेचा जाता था. इंडिया इंपोर्टेड हॉर्सेज, ड्राई फ्रूट्स एंड वाइन फ्रॉम अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया, सिल्क, टी एंड
porcelain from China, silk from Persia, and silver and tin from Southeast Asia. Communities of artisans, जो काश्तकार थे उनकी कम्युनिटीज में क्या क्या था? In Middle India, some of the communities of craftsmen and artisans were quite prosperous and even gave donation to temples. ज़्यादा धनाढ्य नहीं थे, फिर भी वो मंदिरों को डोनेशन देते थे. Among them were the Padma Saliyar of Andhra Pradesh. They were expert silk weavers who claimed descent from a mythical weavers who wove cloth for the gods from Padma fiber. तो ये जो जिनकी बात हो रही है, आंध्र प्रदेश के जो पद्मा सलियार थे, ये सिल्क वीवर थे, यानी सिल्क को अच्छे बुनने वाले थे और काफी एक्सपर्ट थे इसमें. ये मंदिरों के जो पद्मा होते थे, पद्मा के फाइबर होते थे, ये इनको बुनते थे. दे माइग्रेटेड टू तंजावर एंड कांचीपुरम एंड ग्रू वेरी प्रॉस्पर. काफी प्रॉस्पर हो गए, समृद्धशाली हो गए. द कैकोलर वर अनदर पावरफुल वीवर group of South India. The Panchala community of Andhra Pradesh consisted of stone masons and different classes of metal workers, ranking in increasing order of social prestige from blacksmiths to coppersmiths, silversmiths and goldsmiths. Panchala craftsmen often worked together in temples and sometimes gave collective donation to temples. There is a case study. Founded cities. चलिए पढ़ लेते हैं इसे भी. Many rulers of the medieval period founded new cities and shifted the administrative centers or capitals here. Some founded cities to serve as commercial or religious centers. Rajendra Chola of Chola dynasty built a temple town near Tanjavur and called it Gangaikonda Cholapuram. राजेंद्र चोला, जिन्होंने जो चोला डायनेस्टी के थे, इन्होंने तंजावर में एक मंदिर बनवाया और उसका नाम इन्होंने गंगाईकोंडा चोलापुरम रखा और उन्होंने इसका कैपिटल बनाया. फिरोज शाह तुगलक फाउंडेड मैनी सिटीज इंक्लूडिंग फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजा एंड जौनपुर. Akbar built Allahabad as Prayag and his new capital as Fatehpur Sikri. Muhammad bin Tughlaq renamed Devgiri as Daulatabad and from Delhi shifted his capital there. तो हमने पीछे के चैप्टर में हमने सब पढ़ा है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को कैपिटल बनाया, इलाहाबाद बसाया, बिल्ट इलाहाबाद एज प्रयाग एंड मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम चेंज करके उसको दौलताबाद नाम दिया और दिल्ली से अपना कैपिटल यहाँ शिफ्ट किया. The rulers of Malwa built the beautiful fortress city of Mandu. Maharaja Jodha of Marwar built Jodhpur. Bika, a descendant of Jodha, founded Bikaner city. Some of the cities continued to flourish. However, many such cities declined after their founders lost power of died. काफी cities flourish रही, लेकिन यानी अपनी सही अवस्था में रही, अच्छी कंडीशन में रही, लेकिन काफी सिटीज डिक्लाइन भी होती गई क्योंकि उनके जो रूलर्स थे, देयर फाउंडर्स, जो उनके फाउंडर्स थे, वो अपना पावर खो चुके थे या वो उनकी डेथ हो चुकी थी. मेडिवल सिटीज में हम सबसे पहले बात करेंगे हम्पी. हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ द ग्रेट विजयनगर एम्पायर. दिस सिटी इज सिचुएटेड ऑन द banks of the river Tungabhadra in Karnataka. कर्नाटका में तुंगभद्रा नदी के किनारे ये सिटी बसी हुई है, हम्पी. Since Hampi had the Tungabhadra river on one side and cliffs of the other three sides, it was well fortified. अच्छी तरह से इसकी किलेबंदी थी. It was chosen as the capital of विजयनगर due to its strategic location. इसी लोकेशन की वजह से इसको विजयनगर एम्पायर का कैपिटल चुना गया. हम देख सकते हैं इस पिक्चर में, इस फोटो में देख सकते हैं हम हम्पी को.
Trade and commerce. Hampi was an important trade center. The people were prosperous and the city was well stocked with different varieties of goods. The European merchants bought cottons and spices from its market. Hampi also traded with Persia, Arabia, Africa, China, Southeast Asia, Burma and Sri Lanka. इन सब कंट्रीज से यहाँ ट्रेड होता था. The remains of rows and shops on either side of the roads leading to Virupaksha temple suggest that the temples was the center of the commerce. कॉमर्स का जो सेंटर होता था वो टेम्पल होता था, क्योंकि जो शॉप्स हैं, दुकानों के बचे हुए कुछ हिस्से हैं जो विरूपाक्षा मंदिर के आसपास की रोड के साइड में जो मंदिर के हिस्से मिले हैं, जो दुकानों के हिस्से मिले हैं, उससे ये पता लगता है हमें कि जो कॉमर्स के जो सेंटर थे वो मंदिर हुआ करते थे. आर्ट एंड आर्किटेक्चर. The architecture of Hampi was distinct. There were buildings with splendid arches, domes, and pillared halls with niches for holding sculpture. There were well-planned orchard and pleasure gardens. The sculptural motifs like lotus and cobbles adorned the walls and pillars of the buildings. तो जो मंदिरों के जो पिलर्स हैं और जो वॉल्स हैं वो इनकी शोभा और भी बढ़ाते हैं. Hampi had many temples, including the Vitthal Swami temple and the Virupaksha temple. The cultural activities took place in these temples. Temples में जो cultural activities थी वो हुआ करती थी. During the festivals, the Devadasis performed before the royalty and audiences. देवदासी जो मंदिरों में डांस करने वाली होती हैं, मंदिर डांसर्स, टेम्पल डांसर्स, वो फेस्टिवल के समय डांस करते थे. द महानवमी फेस्टिवल और नवरात्रि फेस्टिवल वॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट हम्पी. हम्पी में महानवमी फेस्टिवल, जिसको नवरात्रि फेस्टिवल भी बोला जाता था, वो important festival था. The archaeologists have found a platform called Dibba, which is believed to be a seat for the royal family to watch dance and musical performances during the Mahanavami festival. आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने एक प्लेटफॉर्म ढूंढा है, उनको मिला है प्लेटफॉर्म, और ऐसा माना जाता है कि इस प्लेटफॉर्म पर रॉयल फैमिली बैठकर डांस और म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज देखा करते थे इस महानवमी फेस्टिवल के मौके पर. इन द बैटल ऑफ तालिकोटा इन 1565, वेर इन द फोर्सेज ऑफ विजयनगर वर डिफीटेड इन वॉर बाय द combined armies of बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, बीदार एंड अहमदनगर, हम्पी फेल इन टू रन्स. हम्पी का इससे काफी नुकसान हुआ इन सब की मिले जुले अटैक की वजह से. The glory of the विजयनगर एम्पायर डिक्लाइंड एंड द सिटी ऑफ हम्पी वॉज प्लांटेड एंड डिस्ट्रॉय. इस विजयनगर एम्पायर का जो ग्लोरी था, जो महिमा थी, वो डिक्लाइन हुई और हम्पी को लूटा गया और डिस्ट्रॉय किया गया, प्लंडर किया गया, यानी लूटा गया. Many of its people were killed. काफी लोग मारे गए. Trade continued, but Hampi could not regain its previous glory. व्यापार चलता रहा, ट्रेड चलता रहा, लेकिन हम्पी अपना फिर से जो पहले वाला जो ग्लोरी था वो नहीं पा सका. So this was about Hampi, and in the next video we will talk about Masulipatanam. Okay, and we will complete the video in the next video. Till then you read the chapter, understand the chapter. Okay, take care and have a nice day.